Morning class, it's Naveen, your maths teacher, and today we will start exercise 12.2. Last video we missed question number 5th, 6th, 7th, 8th, 9th question. In fact, I told I gave you already the video of this exercise, the video of the remaining questions of this exercise. But in that video, the voice was not clear. Okay, so I am giving again the solution of question number 5, 6, 7, 8, 8, 9. Okay, so question number 5 is a rhombus shaped field has a green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter. Okay, in question number 5 there is a rhombus shaped field. Okay, there is a rhombus shaped field in which A, B, C and D, and there is a diagonal. Okay, now the side of this rhombus field is 30 meter, and in rhombus all sides are equal to all sides will be 30 meter. Diagonal of it is 48 meter. Diagonal of it is 48 meter. Here, it is a diagonal. We know all the side of this rhombus. We know the diagonal of this. We know the one diagonal of this rhombus. Now, what we are doing here, that we have two triangles. One triangle is ABD and another triangle is BCD. ABD and BCD. And if we find the area of triangle ABD and BCD, after that we can add these both the areas. ओके, दोनों ट्रायंगल के एरियाज को हम दोनों को सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, हमको हमारे रोम्बस का एरिया हमको मिल जाएगा, टोटल फील्ड का एरिया मिल जाएगा। जब हमको टोटल फील्ड का एरिया मिल जाएगा तो वो पूरा फील्ड का एरिया जो है मींस पूरे फील्ड में जो ग्रास है उस ग्रास को 18 काउज जो है वो वहां पर घास को खा रही है। मींस अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास। एक रोम्बस शेप का फील्ड है जिसमें ग्रीन ग्रास है for 18 cows to graze. For 18 cows to graze means 18 cows के लिए वो grazing के लिए क्या है, grass है वहाँ पर। If each side of rhombus, उसके बाद जो दिया गया वो ये रहा। So area of rhombus, area of rhombus, area of triangle ABD plus area of triangle BCD. दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे। Here now with the use of formula, with the use of Heron's formula, under root s minus a, s minus b, s minus c. Okay, ABD के लिए A क्या हो गया, B, A, B, C, 30, 30, 48, 30, 30 and 48, it is 108 and what is S? S is semi-perimeter. Semi-perimeter का means perimeter है उसका half. तो perimeter means S हो जाएगा हमारे पास, S मिल जाना है हमको 54. Now 54 minus 30 is 24. 54 minus 30 it is 24 and 54 minus 48 it is 6. It is 6. Similarly, जो एरिया ट्राइंगल ABD का होगा वही एरिया हमारा ट्राइंगल BCD का होगा। क्लियर ना? सो टोटल एरिया में हम 2 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। मींस जो हम एरिया निकाल रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई भी कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकाल देंगे हम लोग। क्लियर? नाउ 24 लिख लिया हमने, ऐसे बाहर लिख लिया। 9 into 6, 54 can be written as 9 into 6 into 6. Now it is 24 into 3 into 6. Okay, it gave us 24 3 जा
72 into 6. 72 into 6, 6 to the 12. 1 carry 6 and the 42 and 143. 432 meter square. Okay, एक ट्राइंगल का एरिया आ गया 432 मीटर स्क्वायर. So area of rhombus twice into area of triangle ABD. Now it is 2 into 432 meter square. 2 to the 4, 2 3 the 6 and 2 4 the 8. So 864 meter square is your answer. ओके, ये एरिया ऑफ रोम्बस आ गया. अब एरिया ऑफ रोम्बस मींस पूरे फील्ड का एरिया आया है और पूरे फील्ड में 18 काउज आर ग्रेजिंग. मींस इस पूरे फील्ड में जो घास है वो 18 काउ खा रही है. तो पूरा एरिया क्या होगा 864. सो how much area of grass field will each cow will be get? So area of grass field for a cow. एक गाय के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 864 मीटर स्क्वायर अपॉन 18. 18 4 जा 72 and 18 8 जा 144. मीन्स 48 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो एक गाय जो है 48 मीटर स्क्वायर के एरिया की घास को खा रही है. क्लियर? कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को हमको बस समझना था और कैलकुलेशन करना था. रोम्बस फील्ड का एक रोम्बस शेप का एक फील्ड है, इसकी साइड्स गिवन है, एक डायगोनल गिवन है. इट मींस वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, मींस टू ट्रायंगुलर पार्ट्स ए बी डी एंड बी सी डी. देखो मैथ्स को सिंपल बनाना है. अब अगर ऐसे सोचने लगे कि हमको इस रोम्बस का एरिया कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, जब हमको नहीं पता तो सिंपल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया. मींस ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी. नाउ वी हैव टू ट्राइंगल. Firstly, you will find out the area of this triangle and secondly this. Okay. और निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों की साइड सेम है, दोनों का एरिया भी सेम आएगा. तो एक का एरिया निकालो और 2 का मल्टीप्लाई करो. क्लियर? टोटल एरिया मिल जाएगा एंड आफ्टर दैट डिवाइड बाय 18 बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फील्ड फॉर वन काउ. ओके, एक गाय के लिए हमको एरिया निकालना है कि गाय जो है कितने एरिया की घास को कंज्यूम करेगी, मतलब कितने एरिया की घास जो है वो एक गाय के लिए होगी. तो 48 मीटर स्क्वायर. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस. देखो क्वेश्चन को बस समझना है. एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस. अब 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं, इनकी हेल्प से हमको अम्ब्रेला बनाना है. अब अम्ब्रेला की शेप आपके माइंड में आ जाना चाहिए. क्लियर? आर्ट एंड क्राफ्ट से हमने बहुत सी एक्टिविटी की होगी. ट्रायंगुलर शेप का बनाते हैं, उसके बाद हम उनको ज्वाइन कराते हैं. ठीक है ना? सपोज दैट आपने ट्रायंगुलर शेप में बनाया, आपको एक सर्कल ही बनाना है. क्लियर? तो ट्रायंगुलर शेप में हम एक एक करके उनको पेस्ट करते जाते हैं, उनको एक पूरा सर्कल मिल जाता है. सिमिलरली अम्ब्रेला में भी हम ट्रायंगुलर शेप 2 कलर के ले रहे हैं, यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर्स. ओके, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. बेटा कलर जरूर 2 है बट साइज तो दोनों का सेम है. कलर आप सपोज दैट आपका रेड है, ग्रीन है, कुछ भी कलर है, 2 कलर के पीसेस आपको लेने हैं. साइज है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फार्मूला. 20 50 50. 20 50 एंड 50 दिया गया है, हमको निकाल लेना है. s निकाल लेंगे. 20 50 50 से s क्या हो जाना है? s हो जाना है हमारे पास 60. ठीक है, 60 हमको s मिल जाना है. कैसे 60 हो गया? 50 प्लस 50 100 हो गया, 100 प्लस 20 120 हो गया. एंड व्हाट अबाउट s? s इज द सेमी पेरीमीटर, मींस 120 अपॉन 2 इट विल गिव अस 60 मीटर. मींस सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? 60.
जब हमको सेमी पेरीमीटर 60 मिल गया, देन पुट द वैल्यू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, s 60 हो गया, s माइनस ए, s 60 माइनस 50 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, s माइनस 20 सॉरी 60 माइनस 20 इट विल गिव अस 40। बहुत आसान है और बहुत अच्छे से हो जाना है। क्लियर? तो जब एक ट्राइंगल का एरिया हमको पता चल जाएगा तो 10 ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि 10 या फिर 5 और 5, ओके, 5 फॉर वन, 5 फॉर अनदर, दोनों के एरिया को हम फाइंड आउट कर लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हिंट कर दिया है, लगाओ, कोई प्रॉब्लम आती है उसको पूछो। वैसे ऑलरेडी बच्चे कर चुके हैं, बहुत से बच्चे कॉपी भी चेक कराने आ चुके हैं, कम से कम 10 से 12 बच्चे कॉपी चेक करा के गए हैं और एक्सरसाइज को कर लिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, बस करते रहना है। नेक्स्ट, अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट है जो कि स्क्वायर शेप में है। अ काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर। Next question, the question is, a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and 6 sides 6 centimeter each of, okay, कैसे करना है इसको? इसमें कंफ्यूज होते बच्चे, एक ही साइड दी गई है, कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना? ओके, a kite in the shape of a square. A, B, C, D, तो C को यहां पर कंसीडर करते हैं। नाउ अनदर ट्रायंगल इज दिस, a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter, diagonal की लेंथ दी गई है कितना? 32, means BD is equal to 32, okay, and isosceles triangle of base 8 centimeter and ये है हमारा 8 सेंटीमीटर और ये है 6। अब स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप का दिया गया, स्क्वायर शेप की काइट है, इट मींस स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को। तो ये हमारा हो गया 32, व्हाट अबाउट इट? It will be 16. It will be 16. 16 and 16. Clear? So, in this question, area of triangle ABD. Area of triangle ABD, half base into height. Half base into height. Half base क्या है हमारे पास? 32 और हाइट क्या है? 16। 2 बन जा, ये 16 हो गया। इट इज नाउ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया कितना आ गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये भी वही होना है, क्लियर? तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा आपका 256 प्लस 256, इट विल बी 512। क्लियर? एरिया ऑफ स्क्वायर शेप क्या आ जाएगा? 512। अब एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए का निकाल दो और दोनों को ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। ओके, एक फ्लोरल डिजाइन बनाई हुई है, मीन्स घरों में जो डिजाइन होती है फ्लोर पे टाइल से रिलेटेड बनाया गया है, या फिर छोड़ो भूल जाओ फ्लोरल डिजाइन। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप एक्टिविटी में फर्श पर कोई डिजाइन वगैरह बनाते हैं, घर पर हम डिजाइन बनाते हैं रंगोली वगैरह, तो
उसमें डिजाइनर बनाते हैं, उसमें हम ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, सपोज दैट आपने ट्राइंगल शेप के बना रहे हैं, ट्राइंगल शेप का आपने 2 कलर के बना रहे हैं अलग अलग। नाउ 16 टाइप्स विच आर ट्राइंगुलर, द साइड ऑफ द ट्राइंगुलर 9, 28 एंड 35। 9 है, 38, 28 है, 35 है। एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दो बाय यूजिंग हीरोन्स। 16 टाइल्स का निकालना है, 16 का मल्टीप्लाई कर दोगे एक का एरिया निकालने के बाद, एंड आफ्टर दैट आपको इसका कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग। तो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसे का टोटल में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आपके पास होगा। Question number 9. A field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10. Okay. A field in the shape of a trapezium, एक फील्ड है ट्रेपेजियम शेप में, क्लियर? लेट्स सी। बेटा इसमें बहुत बड़ा रोल है, जिससे वर्ड आते हैं जैसे कि ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरालोग्राम। अब अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है तो बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो पहले ये छोटी छोटी चीजें आपका भी घर पर हो, सारी चीजें छोटे छोटे ये वर्ड आप लिख लो अलग से, और फिर उनको सर्च मारो, उनको पढ़ो, उनके बारे में नहीं समझ में आता है पूछो। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, मीन्स इसको मैथ्स का वोकैब बोलते हैं। तो जब तक हमारा मैथ्स का वोकैब क्लियर नहीं है तब तक मैथ्स हमको समझ में आनी ही नहीं है। तो पहले तुमको प्रॉपर्टीज ये सीखनी है। अब ट्रेपेजियम ही आपको नहीं पता कि ट्रेपेजियम क्या होता है, व्हाट इज ट्रेपेजियम। सिंपली आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको पता रखना चाहिए, पता होना चाहिए, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम है क्या ये तो पता होना चाहिए। ट्रेपेजियम है क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड, a closed figure with 4 side, और उसी का एक है हमारा फर्स्ट ट्रेपेजियम। नाउ क्लियर? ये हमारा एबी 10 सेंटीमीटर, और ये हमने कंसीडर कर लिया 15। सी एंड डी ये है हमारा 13 सेंटीमीटर, क्लियर? ये हमारा 14 सेंटीमीटर। क्या किया हमने? इसके पैरेलल ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, 10 ये रहा और 13 ये रहा। ओके, जब टोटल 25 है, टोटल है 25 नॉट 15, टोटल इज 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेंगे? इसको हमने लिख तो लिया ही है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है a field in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10, the non-parallel sides are 14 and 13, find the area of field। अब अगर हम फिगर को बनाने बैठेंगे तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आएगी, आपको जनरली अगर बनाएंगे तो इसको हमने क्या किया, तो हम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। इसको हमने एक पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल 2 शेप में इसको डिवाइड कर दिया, इसको हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रेपेजियम बनाया हमने 10, 25, 14 एंड 13, क्लियर? नाउ ये पैरेललोग्राम बनाना, हमको पता है कि AB जो है ये पैरेलल है CD के, CE ये हमने 10 सेंटीमीटर, इसको हमने ड्रॉ किया, ये 13 मीन्स इसके पहले ड्रॉ। नाउ इट इज अ ट्रेपेजियम, इट इज अ पैरेललोग्राम
इट इज अ पैरेललोग्राम एंड इट इज अ ट्राइंगल। दोनों के एरिया फाइंड आउट कर दो, दोनों को सम कर दो, आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाना है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 8 और 9। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल BED अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। क्लियर? व्हाट इज S क्या होगा यहाँ पर? 13 प्लस 15 प्लस 14 इट इज 42 अपॉन 2 इट इज 21। So use here, means write here 21 minus 13 it is 8, 21 minus 15 it is 6, 21 minus 14 it is 7. Now it is 3 into 7 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। 2 पेयर बन गया, 2 and 2 का, 3 and 3 ये भी एक पेयर बना, 7 and 7 ये भी एक पेयर बन गया। 7 3 जा 21, 4 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। सिंपल, बेस इनटू हाइट। बेस हमको पता है बट हाइट हमको नहीं पता। हाइट जो ट्राइंगल की होगी वही हाइट पैरेललोग्राम की भी होगी। तो सिंपली हम हाइट फाइंड आउट कर लेंगे पहले। हाइट ऑफ ट्राइंगल half base into height, half base into height it is क्या है? ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ बेस कितना है हमारे पास? 15 इट इज h। तो 84 into 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू h। तो ये हो जाता है हमारा 3 5 का 328 28 2 जा it is 56। h is equal to 56 upon 5। Here h is equal to 11.2 सेंटीमीटर। h हो गया 11.2 सेंटीमीटर। जब 11.2 h आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर दो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। बेस है हमारा 10, हाइट है हमारी 11.2, आंसर आ जाएगा 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 112, एरिया ऑफ ट्राइंगल 84, दोनों को ऐड कर दोगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम आ जाएगा, इट विल बी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। So your 12th chapter is finished now. Now we will start our next chapter, surface area and volume. But before this, we will take 2 or 3 days for revision. Okay? So whatever you want to ask, जो भी आपको पूछना है उसको पूछो। 2 से 3 दिन में आपको टाइम दे रहा हूँ। मीन्स टुडे इज 21 टिल 25 तक आपके पास टाइम है। जो भी पूछना हो अब तक जो कराया है, बाकी वीडियोस में शेयर कर दूंगा दोबारा से ग्रुप में, तो उनको दोबारा से जो भी पूछना है उसको पूछो और डिस्कस करते रहो। थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, हैव अ नाइस डे।